Well, viewers, those are the headlines in our top focus. Abhijit Dipke, founder of the Cockroach Janata Party, is leading a protest at Delhi's Jantar Mantar, demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over multiple examination irregularities, including the alleged NEET UG paper leak. The party, which began as a satirical campaign following remarks by the Chief Justice of India, has now gained significant traction on social media. However, it remains to be seen whether this online popularity can be converted into a sustained, organized and genuine movement on the ground. With me on the broadcast is my colleague Atul Ranjan. We also have with us Javed Hussain, who are live from the Jantar Mantar protest side. Atul, I'll come across to you first. What's happening on the ground? Of course, we've seen crowds gather since early this morning. There are many people who've come from across the country. Well, yes, totally. As I speak right now, the protest has officially ended, and the probably last batch of protesters who were still there at the Jantar Mantar are right now leaving the protest site. But even as they are leaving the protest site right now, you can hear in the background they are still demanding for their resignation of Dharmendra Pradhan, the Education Minister, and raising slogans against the government, which around spoiling the future of the youth, and obviously the resignation of the Chief Education Minister Dharmendra Pradhan. Obviously the protesters that we spoke to, they said that they had been here at the Jantar Mantar right since morning, 9:30 to 10 a.m. and the protesters are finally going right now. So the protest you could say lasted for about 6 hours. However, Abhijit Dipke and other top leaders of the Cockroach Janata Party were there only for about an hour or two. All right, it seems that we are losing your connection. We'll try to get that back. In the meantime, we do know that Cockroach Janata Party founder Abhijit Dipke has now spoken out amidst the protests. He stated that these protests will continue for a long time and until the Education Minister resigns. Let's in fact listen in to what he said. अभिजीत तुम संघर्ष करो He will have to resign and this movement because they are taking people for granted. अभिजीत जी बोला जा रहा है उन्हें With us on the broadcast is my colleague Javed Hussain. Javed, we've just learned from Atul that the protests are concluding. It seems that people are now leaving from the spot, but even while doing so, they're continuing to sloganeer and their demands still are echoing on the streets. जो प्रोटेस्ट है जो बीजेपी की तरफ से नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कॉल किया गया था, वो प्रोटेस्ट जो है इस वक्त खत्म का कॉल लिया गया। हालांकि 5 बजे तक का समय था, लेकिन इस वक्त 4 बज रहा है और 3:35 के आसपास की कॉल लिया गया था कि आप प्रोटेस्ट को खत्म किया जा रहा है। सोनम वांगचुक और बता दें आपको कि अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया है कि वो अगले शनिवार को एक बार फिर से जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और यहाँ पर एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। हो सकता है कि जो जिस तरीके से तैयारी उन्होंने सोचा था कि भीड़ उस तरीके से आएगी, उन्हें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, तकरीबन 2000 के करीब जो है लास्ट तक जो है लोग 2000 तक थे, लेकिन शुरुआत में जो ये भीड़ कम थी, तकरीबन 1200 और 1000 के करीब ये भीड़ थी, 1300 तक भीड़ थी, लेकिन उसके बाद जो है भीड़ दोपहर के बाद बढ़ी है, तकरीबन 2000 तक की भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ नहीं थी जो अभिजीत दीपके ने जो एक्सपेक्टेशन किया था। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वो जिस तरीके से एजुकेशन में जिस तरीके से पूरी गड़बड़ी हो रही है और कहीं ना कहीं तो ये पूरा एक जो इस पार्टी का मेन प्रदर्शन का कॉल था वो नीट यूजी स्कैम को लेकर था, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था और लगातार साल 2024 की बात करें या 2026 की, इसको लेकर जो है वो उनका एक कॉल था। और देखिए ये प्रदर्शन ज्यादा जो है इसलिए नहीं भी हो पाया कि कहीं ना कहीं एक पूरा मैनेजमेंट था, जो मैनेजमेंट कहीं से जो है मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं दिखा और इस वजह से, और धूप भी जो गर्मी की अगर बात करें तो उस वक्त टेम्परेचर ज्यादा था, क्योंकि बीच में जो है अभिजीत दीपके और सौरभ दास के यहाँ से गए भी थे, क्योंकि जो जानकारी मिली थी कि धूप
होने की वजह से, स्टेज प्रॉपर ना होने की वजह से ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं धूप की वजह भी मानी जा रही है। और हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है कि अगली बार शनिवार का जिस तरह से इन्होंने कॉल किया है, सोनम वांगचुक की तरफ से भी कहा गया है, दीपक अभिजीत दीपके की तरफ से भी कहा गया है कि हो सकता है कि एक नई स्ट्रैटेजी, नई तैयारी के साथ फिर जंतर मंतर पर होंगे। और ऐसा ये भी कहा गया कि शुरुआत में इनके समर्थकों ने कहा कि शुरुआत में जो है हमें परमिशन नहीं था और हमने लास्ट मोमेंट हमें परमिशन मिला, इसलिए भी भीड़ नहीं आ पाई और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी ज्यादा थी। लेकिन देखिए, शुरुआत से ही जो एक प्रोसेस होता है परमिशन का, वो तकरीबन 7 दिन पहले परमिशन लिया जाता है, जिसमें दिल्ली पुलिस की एचएक्स ब्रांच को ये इंटीमेट दिया जाता है किसी प्रदर्शन को लेकर। उसके बाद उसको पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता है, तब जाके जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। जिन मांगों को लेकर जो दीपक अभिजीत दीपके ने यहाँ से गए हैं और यहाँ पर जो यूथ है, ज्यादातर जो क्राउड है, ऐसा जो जानकारी मिल रही कि ज्यादातर जो क्राउड है दिल्ली के बाहर की का जो वो भीड़ थी वो यहाँ पर आई हुई थी। दिल्ली की भीड़ बहुत कम थी। दिल्ली की अगर यूथ की बात करें तो वो बहुत कम देखने को मिला कि जो अगर आसपास के लोकल सपोर्ट की बात करें या लोकल जो यूथ की बात करें तो वो भी, उनका भी गैदरिंग जो भीड़ है वो यहाँ पर नहीं आया था। और ज्यादातर जो भीड़ है हरियाणा, उत्तर प्रदेश के एनसीआर इलाके के जो यूथ यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर उसके बाद क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्मी ज्यादा है, ये भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि अगले शनिवार को एक बार फिर से ये लोग यहाँ पर गैदर होंगे, यहाँ पर वापस आएंगे गैदरिंग के साथ, तो हो सकता है कि कुछ नई स्ट्रैटेजी और एक इम्पैक्ट के लिए यहाँ पर ज्यादा भीड़ आने के लिए इस बीच इनकी तरफ से स्ट्रैटेजी जो है वो कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जाएगी। All right, with that, I'd like to thank you, Javed, for joining us on the broadcast, sharing all of those details. On that note, viewers, we're shifting focus to updates regarding West Bengal.